Hello dear student, good morning to all of you and welcome back to online study. I am your educator Vinyan with new chapter with new topic biotechnology principle and process. So in last class we have discussed about biodiversity and its conservation. We have already discussed about its related questions. So I hope that chapters and that questions were clear. Please complete your book exercise whatever given at the end of chapter. So today we will discuss about biotechnology principle and process. Let's see. Let's see what we will see today. Today we will see what is biotechnology, then principle of biotechnology, the technique of genetic engineering, and what is recombinant DNA technology. So I will discuss in detail. Please you will also try to understand. Come to main point. What is biotechnology? Biotechnology, the technology which is used in biology to extract any new things. The technology which is used in biology to extract new things, and it is based on modern tools and technique. That is known as biotechnology. So the broad area of biology which use both technology and application of living organism and their components to develop, modify and produce useful product for the human welfare. This is the broad area of biology in which we use new technology and its application for develop, modify and produce new useful product for the human beings or for world. So the term biotechnology was coined in 1909 by agriculture engineer Carole Ireki, and that's why he is known as father of biotechnology. So the father of biotechnology is known as Carole Ireki. He was agricultural engineer and he gave terms biotechnology in 1990, and the father of biotechnology is known as Carole Ireki. So this is definition, and scientists will develop biotechnology terms and condition. So I hope these points are clear. Come to next point. Let's see what are the principles of biotechnology. Principle on the basis of which any application work. Principle, that is the rules on the basis of which any new technique work. So according to modern biotechnology, the main principle of biotechnology are genetic engineering, which is used to modify the DNA of target organism, thereby changing the phenotype of the organism. अब बायोटेक्नोलॉजी है, इट इज़ बेस्ड ऑन मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक. तो इसमें हम डीएनए के जो ऑर्गेनिम्स है उसके डीएनए को लेते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करके न्यू ऑर्गेनिम्स का फॉर्मेशन करते हैं. इन दैट केस जो भी न्यू इंडिविजुअल बनेंगे, न्यू ऑर्गेनिम्स बनेंगे, उसका फिनोटाइप कैरेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. लेकिन जो जीनोटाइपिक कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे, पेरेंट्स से मिलेंगे. उनका जो हेरिडिटी कैरेक्टर होगा एजिट होगा, लेकिन जो फिनोटाइप कैरेक्टर होगा वो लगभग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. और इट इज डन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग. Bioprocess engineering, which is the maintenance of sterile condition to support growth of large quantity of desired microbes and other eukaryotic cells, which are used for the production of new modified biotechnology products such as antibiotic, enzyme and vaccine. जो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग है, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक का क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को बनाते हैं. और ये जो बायो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो स्टेराइल कंडीशन है, कभी कभी होता है कि कोई चीज़ें नहीं हो पाती हैं एंड दे आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो इन दैट केस विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वी कैन मेक अ न्यू माइक्रोब्स या न्यू ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ अर्लियर या ओल्ड
ऑर्गेनिज्म। सो इसमें क्या है कि टाइम भी कम लगता है और देन जो क्वांटिटी है, जो ग्रोथ है, वो भी क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट वी कैन मेक अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. So it is useful for both plants as well as animal and living being of the world. So these are the two main principles of biotechnology, that is the genetic engineering and bioprocess engineering. So in genetic engineering, we change the phenotypic character of any organism, and in bioprocess engineering, we are able to make antibiotic, enzyme and vaccines. So I hope these points are clear. Come to next point. Let's see technique of genetic engineering. अब आप यदि वर्क करते हो तो उसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज किया जाता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, अपने प्रिंसिपल देखा कि इसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं, ठीक है। देन इसमें कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं ताकि उसके बेसिस पे ये वर्क करता है। सो द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मेनली इंक्लूड डीएनए फ्रैगमेंट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। हम क्या करते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म का हमको न्यू कॉपी तैयार करना होता है, तो हम जो डोनर है, डोनर मतलब जो जिससे हम किसी चीज को ले रहे हैं, तो उसके हम डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं एंड इट इज इंसर्टेड इनटू द वेक्टर डीएनए। और ये वेक्टर डीएनए क्या है, जहाँ पे हम उस डीएनए को क्या करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं। आई मीन एक ऑर्गेनिज्म से हमने डीएनए के कॉपी को लिया या डीएनए के मटेरियल को लिया और दूसरे में हमको उसको क्या करना है, इंसर्ट करना है। इट इज ट्रांसफर इनटू द एप्रोप्रिएट होस्ट। और हम ऐसा नहीं कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी चीज़ में ऐसे उसको इंसर्ट कर सकते हैं, नॉट लाइक दैट। इसको इंसर्ट करने के लिए हमको जो हम होस्ट चूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, पूरे तरीके से डिजीज फ्री होना चाहिए, उसमें किसी तरीके की बीमारी नहीं होना चाहिए। एंड देन जो आप डोनर लोगे वो भी क्या होना चाहिए, हेल्दी एंड यूजफुल होना चाहिए। देन क्लोनिंग ऑफ द रिकमेंडेड डीएनए इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और जब हमको होस्ट मिल जाएगा जिसमें हमको इंसर्ट करना है, तो हम इसके जो भी अपने डीएनए फ्रैगमेंट लिया है उसका नंबर ऑफ कॉपी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे होस्ट ऑर्गेनिज्म की सहायता से बना सकते हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज द डीएनए, यहाँ से दिस इज द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच डीएनए आर एक्सट्रैक्टेड, दिस इज द डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देन हम उसको सीजर की सहायता से क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए एंड देन उसको हम स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेंगे। देन हम इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, न्यू होस्ट सेल में। और न्यू होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के बाद से ये न्यू प्लांट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा या न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. Come to next point. Let's see what is recombinant DNA technology. So recombinant DNA technology, the technology is also known as genetic engineering. जो recombinant DNA technology है इसको हम genetic engineering भी कहते हैं and it is the process of joining together 2 DNA molecules from 2 different organisms. जैसे इसमें क्या करते हैं कि 2 चीजों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को आपस में क्या करना है, ज्वाइंट करना है एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ 2 डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, द प्रोसेस बाय विच वी कैन ज्वाइन 2 डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस बाय विच we are capable to join 2 DNA molecules from 2 different organisms, that is known as recombinant DNA technology. और इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। यू कैन से हियर recombinant DNA टेक्नोलॉजी, यहाँ पे है रिस्ट्रिक्शन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देन इसमें हम क्या करते हैं कि 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को लेते हैं और उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से उसमें इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद से दोनों अलग अलग प्रोब्स में जाएंगे। हम उसको एक मॉलिक्यूलर सीजर की सहायता से, ठीक है, हम उसको आपस में क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। यू कैन सी हियर दिस इज 1
एंड इको आर फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं इश्चेरिशिया कोलाई, एंड ये है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दोनों आपस में क्या करेंगे, इसका एक प्रोब हट जाएगा और इसका भी एक प्रोब हट जाएगा, और हम इस तरीके से उसको डीअटैच करेंगे ताकि दोनों एक दूसरे में जाके क्या करें, अच्छे से फिक्स हो जाए। यदि आप ये करोगे तो वहाँ पे अच्छी कॉपी नहीं बन पाएगी। सिर्फ हम नीचे मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड को क्या करते हैं, कट करते हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो 5' to 3' और 3' to 5' डीएनए का 2 लेयर होता है। एक होता है 5' to 3' और दूसरा 3' to 5'। तो 5' to 3' ये दिस इज द स्टिकी एंड, जहाँ पे वो क्या हुआ है, जुटा हुआ है। फिर इसमें से 1 मॉलिक्यूल इको आर फर्स्ट, दैट इज द नोन एज इश्चेरिशिया कोलाई। डीएनए फ्रेगमेंट्स ज्वाइंट एट स्टिकी एंड्स, यह है स्टिकी एंड, और यहीं पे डीएनए आके क्या करेगा, ज्वाइंट करेगा, और जब ज्वाइंट करेंगे तो ये दोनों बन जाएंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इन नेक्स्ट क्लास we will discuss the process of recombinant DNA technology in detail. So the process by which we are capable to join 2 DNA molecule from 2 different organism, that is known as recombinant DNA technology. I hope these points are clear. Come to next point. Let's see steps involved in the recombinant DNA technology. So the steps involved in the recombinant DNA technology are, पहले तो हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, और जो यहाँ से हम आइसोलेट करेंगे वो डीएनए क्या होना चाहिए, जो ऑर्गेनिज्म है बहुत ही हेल्दी एंड यूजफुल होना चाहिए। डीएनए फ्रेगमेंट आर यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब जहाँ से हमने डीएनए आइसोलेट किया है उसके हम छोटे छोटे कॉपी बनाएंगे, किसकी सहायता से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या है, एक एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दैट इज द एंजाइम। इसकी सहायता से हम डीएनए के फ्रेगमेंट तैयार करेंगे, छोटे छोटे पीसेस तैयार करेंगे। ये क्या करेगा, डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करने का काम करेगा। देन लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर। अब ये लाइगेज है, जिसको हम लाइगेशन कहते हैं। इसकी सहायता से हम जो फ्रेगमेंट डीएनए है उसको हम होस्ट सेल में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, this is the next steps. Then culture of transport cell into nutrient medium. जब हम इसको रिकम्बिनेंट डीएनए, जो आपने डीएनए लिया है, यदि आप उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दोगे, फिर उसको एक कल्चर मीडियम में रखेंगे ताकि उसको न्यूट्रिशन मिले और वो धीरे धीरे अच्छी मीडियम में ग्रो कर पाए। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट। जब ये पूरे तरीके से वहाँ पे उसका कल्चर हो जाएगा, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, फिर हम उसको क्या करेंगे, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। यू कैन सी हियर, ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये क्या है, जहाँ से हमको डीएनए लेना है। ये है टीडीएनए, जिसको हम टीआई प्लाज्मिड्स कहते हैं, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, कट करेगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से हम डीएनए फ्रेगमेंट को, यहाँ से डीएनए बाहर निकला, इसको फिर हमने एक स्पेसिफिक साइट पे कट किया, और इसको हम चूज करते हैं स्पेसिफिक साइट जहाँ पे हम आसानी से उसको क्या कर सकें, कट कर सकें। देन डीएनए कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो ये आपने फिर यहाँ से हम जो डीएनए लिए हो, ठीक है, उसको हम इसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के से रिकम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड, यहाँ पे हम इसको इंसर्ट कर देंगे। देन यहाँ पे इंसर्टेड टीडीएनए कैरिंग न्यू जीन, फिर इसमें जो आपने जीन इंसर्ट किया है तो यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, फिर यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर आ गया, फिर यहाँ पे न्यू जीन इसमें मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद से ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो आपको एक होस्ट सेल लेना है, होस्ट सेल डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके सहायता से फिर डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके आपको उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करना है, और एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा जिसकी सहायता से आप डीएनए के होस्ट सेल को क्या करोगे, कट करोगे। कट करने के बाद से जो आपने जीन लिया है उसको आप उस वहाँ पे इंसर्ट करोगे, और इंसर्ट करने के बाद से उसमें नए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और वही नया एम्ब्रियो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ट्रीट फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज। यहाँ पे फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गया,
और प्लाज्मिड हो गया जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, और डीएनए लाइगेज होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं एंड लाइगेज की सहायता से उसको ज्वाइंट करते हैं। इंट्रोड्यूस द रिकमेंडेड प्लाज्मिड इनटू कल्चर प्लांट सेल। देन जो आपने जीन लिया है उसको हम कल्चर प्लांट सेल में इंसर्ट करते हैं। देन उसको एक कल्चर मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पे अच्छे से उसको हर चीज़ मिल सके, उसको सुटेबल कंडीशन एंड फेवरेबल कंडीशन मिल सके। देन जब उसको वो सब चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं तो फिर हम वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर वही न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द स्टेप्स दैट इन्वॉल्व इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. This is new chapter and new topic for all of you. So please try to understand. If you have any doubt, you can ask in your doubt lesson. So come to next point. So today we have discussed about what is biotechnology, what are the principles of biotechnology, then what are the steps involved in the biotechnology, then recombinant DNA technology and steps involved in the recombinant DNA technology. So I hope that points were clear when you will listen it. Thanks. Stay safe and stay happy. Stay connected. Thank you.